साथियों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेमोरेंडम तैयार किया गया है कोलोजियम को लेकर के। टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, भगवान दास रोड, न्यू दिल्ली। मेमोरेंडम: इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, आदिवासी एंड माइनॉरिटीज क्लासेस जजेस इन हायर जुडिशरी, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. Respectfully so it that on the aforesaid subject issue, the National Bahujan Representative Conference held on 20th day of May 2023 since 10 a.m. to 2 p.m. at Narendra Tiwari Bhavan, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi. The following representatives, like learned lawyers, honorable retired judges, and social thinkers, etc., from the different parts of the country, participated in this conference and expressed their views on the burning issue collogium, through which the judges are appointed in the High Courts and in the Honorable Supreme Court of India. Second, that in the conference, after deep discussion, it has been decided that a memorandum of representation be presented in the aforesaid regard before the Honorable Chief Justice of India, and the copy of the same be sent to all the Honorable Chief Justice of different high courts in the country for proper consideration as soon as it may possible. Third, that the Constitution of India provides equal justice to all the citizens of India, but in higher judiciary, stated above, there is no equal and appropriate representation of the aforesaid classes, due to which not only lawyers and retired judges, the whole intellectuals of the aforesaid classes are demanding their equal representation in their judges in higher judiciary, either by the collogium or by the National Judicial Appointment Commission. ठीक है, आप कोलोजियम रखो, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन जितना होना चाहिए वो करो, वो पूरा करो। हमारी मेन चीज तो ये, मेन डिमांड हम ये करते हैं। अच्छा, फोर्थ, that due to the present system of appointment of judges in higher judiciary by collogium, so many questions have been raised. जो पूरे देश भर से क्वेश्चन उठाए गए हैं, उसमें 4-5 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नंबर 1, whether the collogium is a constitutional agency? कोलोजियम क्या एक संवैधानिक संस्था है? No. There is no provision under the Constitution of India to frame the collogium, to establish the collogium by which the judges shall be appointed in higher judiciary. There is no system. ये एक असंवैधानिक एजेंसी है जिसके माध्यम से, कितनी वंडरफुल बात है, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट किए जाते हैं, वो फैसले देते हैं। नंबर 2, whether the Constitution of India has given the power to the collogium to appointment of judges in high courts judiciary from the particular caste and particular families only? क्या भारत का संविधान ये इजाजत देता है कि पर्टिकुलर क्लास से और पर्टिकुलर फैमिली से ही जज बनाए जाए? नंबर 3, whether in eye of the collogium, the learned lawyers and learned judges of the aforesaid classes are not competent to be appointed and work in higher judiciary like others belonging to the general community? क्या ये जो बहुजन समाज के लोग हैं क्या कॉम्पिटेंट नहीं है? जजेज हैं, लॉयर्स हैं, क्या कॉम्पिटेंट नहीं है वो वहां काम कर सके? तो next, whether the aforesaid system of collogium for the appointment of judges in higher judiciary is not partial or discriminatory? क्या जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है क्या पार्शियल नहीं है, क्या डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है? क्लियर दिखाई देता है, जब आप है ही नहीं, आपको कंसीडर नहीं किया जा रहा, तो ये पार्शियल सिस्टम है, डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है, इट मस्ट बी अबॉलिश्ड. लास्ट, whether learned lawyers and learned judges of the aforesaid classes are not entitled for their equal representation as judge in the higher judiciary of India? क्या बहुजन समाज के जो लॉयर्स हैं, जजेज हैं, उनको अधिकार नहीं है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो जज बनकर के काम कर सकें? ये 5 बिंदु हैं, इन पर जवाब देना सीजीआई को बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। सारे चीफ जस्टिस को जाएगा, कॉपी जाएगी इसकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। That there is no provision under the Constitution of India for the reservation of the aforesaid classes in higher judiciary. ठीक है, रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है, but the Constitution of India has not prohibited them
and their equal representation as judge in the higher judiciary. रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन के लिए मना नहीं करता, वो आप क्यों नहीं करते? And hence the learned lawyers and learned judges of the aforesaid classes are fully entitled for their equal representation as judge in higher judiciary of India. ठीक है? Last, it is therefore most respectfully to your honor that keeping in view in the above facts and circumstances, this representation memorandum may kindly be considered accordingly by way of appointment of judges of the aforesaid classes in an equal manner in the higher judiciary of India, either by collegium or by National Judicial Appointment Commission. ठीक है, हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पूरा होना चाहिए. आप कॉलेजियम करते हो तो पक्षपात करते हो, ये खत्म होना चाहिए. ठीक है, ये मेमोरेंडम जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए. तीसरा है ये जाति जनगणना पर आधारित. ठीक है, आप सब लोग जानते हैं, ये कॉपी जा रही है टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीएमओ, ई ब्लॉक, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, न्यू दिल्ली. इतना रिस्पेक्टफुली सो इट that a National Bahujan Representative Conference held on 20th day of May 2023 since 10 a.m. to p.m. at Narendra Tiwari Bhavan, Deen Upadhyay Marg, New Delhi, in which the following representatives from the different parts of the country participated in the conference and expressed their views on the burning issue of Jatigat Janganna in the country. That in the support of the above noted issue of Jatigat Janganna, all the respected members of All India Bahujan Ekta Evam Samta Mission and others also raised their hands and passed the proposal by full majority in the support of Jati Janganna. ठीक है, हर देश से कोई भी पत्रकार हमारा है वो भी आवाज उठा रहा है, हर व्यक्ति उठा रहा है, अरे भाई आपने 10% रिजर्वेशन कर दिया ईडब्ल्यूएस का, उनकी आपने जनगणना कराई किसने है? ठीक है, नहीं कराई. पटना हाईकोर्ट का जज क्या कहता है, अभी जो नीतीश की सरकार है वो जातिगत जनगणना पटना में हो रही थी बिहार में, उसने स्टे कर दिया कि नहीं जातिगत जनगणना नहीं होगी. भाई क्यों नहीं होगी? भाई जज को ये पावर, ये वायोलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का. कब से जाति जनगणना नहीं हुई? अच्छा, नेक्स्ट, दैट इन द एब्सेंस ऑफ जातिगत जनगणना द पीपल ऑफ SC, ST, OBC, आदिवासी एंड माइनॉरिटीज suffer by their equal rights and facility regarding their reservation in the government services and in other public or private sectors. Next, that in the present time the government of Bihar started Jatigat Janganna, but the Patna High Court passed the stay order against the Jatigat Janganna, and on the other hand, without Jatigat Janganna, the Supreme Court of India passed the EWS reservation as 10% in the government services on economic basis, which is contrary to the Constitution of India. First of all, there is no provision under the Constitution of India for reservation on economic basis. ये तो सवाल ही नहीं है, संविधान में ऐसा प्रोविजन नहीं है. भाई रिजर्वेशन दिया गया विद द पॉलिसी ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड को है, ये कहां से आप ले आए? वेयर एज द रिजर्वेशन इज नॉट ए गरीबी हटाओ आंदोलन, पॉवर्टी रिमूवल सिस्टम. रिजर्वेशन गरीबी हटाओ आंदोलन नहीं है. सो द रिजर्वेशन कैन नॉट बी गिवन to any class and community on economic basis. Secondly, the Supreme Court of India, without seeking the correct data of EWS population, granted 10% reservation in favor of the general people. Thirdly, if the yearly income of general candidate would be 8 lakhs, then he shall be entitled to get the reservation. But if the yearly income of SC, ST becomes less than 3 lakhs and the income of OBC becomes less than 6 lakh, then the candidate of these classes shall be entitled to get the benefit. But the candidate of EWS, this condition is not implemented on them. ये कंडीशन उन पर नहीं है. 8 लाख है वो गरीब है, ठीक है,
शेड्यूल कास्ट का है 3 लाख है, ओबीसी का है वो 6 लाख है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। इसके बाद कितना, फोर्थली, बिफोर दिस ऑर्डर जो अभी पास हुआ है, सेविंग जजेस बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी हेल्ड दैट द रिजर्वेशन शैल नॉट बी इंक्रीज्ड मोर देन 49.5%, जिसमें हीरालाल कानिया चीफ जस्टिस थे उस समय। तब 7 जजों की बेंच ने ये हेल्ड किया था। क्या 5 जजों की बेंच 7 जजों के ऑर्डर को ओवररूल कर सकती है? कोई नहीं बोलता। हम बोल रहे हैं, आज कल आप भी बोलेंगे, पूरा देश बोलेगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा मीडिया स्ट्रांग नहीं है, और मीडिया की वजह से हमारा पूरा समाज, पूरा देश सफर कर रहा है। ठीक है, बट द 5 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड द सेम एंड पास्ड द ऑर्डर ऑफ फॉर 10% रिजर्वेशन ऑफ द जनरल पीपल विदाउट सीकिंग द डाटाज ऑफ जनरल पीपल इन दिस रिगार्ड। कोई डाटा आपने कलेक्ट की है भाई सवर्णों की आबादी कितनी है? कोई डाटा नहीं, और आपने 10% कर दिया। कोई कमीशन भी नहीं, कुछ किया जाए, बनाया ही नहीं। किया जाए। जी हाँ, therefore the stubborn people are getting their full reservation benefits according their population, and the candidates of SC, ST, OBC, Adivasi and minorities are suffering for the same। 85% हम आवाज भी नहीं निकालते, हम सफर कर रहे हैं। वही हमने महसूस कर लिया कि कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, दैट ऑन वन साइड द पटना हाई कोर्ट हैज स्टे द जातिगत जनगणना in the state of Bihar, and on the other side the Supreme Court of India passed 10% reservation in the government services in the favor of general classes without seeking the data of their population in the country, and hence the people of SC, ST, OBC, Adivasi and minority are going to suffer कर रहे हैं हम लोग। तो ये जातिगत जनगणना के जो बैड इफेक्ट हमारे समाज पे होने वाले हैं, इसका लास्ट पेज भाई नहीं है, इसमें कहाँ चला गया? ये है, ठीक है, निकल गया। इट इज देयरफॉर रिस्पेक्टफुली सबमिटेड टू योर गुड सेल्फ दैट कीपिंग इन व्यू इन द एवरलोड फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस द जातिगत जनगणना ऑफ ऑल द क्लासेस लाइक SC, ST, OBC, आदिवासी, माइनॉरिटी एंड जनरल इज वेरी नेसेसरी, एंड हेंस इट मे काइंडली बी कंसीडर्ड अकॉर्डिंगली to do the same in the interest of the nation। ये कॉपी जा रही प्राइम मिनिस्टर को, सारे गवर्नर्स के लिए ये जाएगा। तो इस तरह से 3 मेमोरेंडम जो आप लोगों के व्यूज को लेकर के, आप लोगों की सलाह से तैयार किए गए हैं, इन पर यदि कोई बात समाज के हित में नहीं है, कहीं गलत कह दी गई है, तो आप लोग उसे बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथियों, अब आपका समय मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी हो गया, ये बताना जरूरी भी था। अब आप लोगों के भी व्यूज मैं सुनने की कोशिश करूंगा, और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर। SC, ST के अलावा जो हमारा OBC वर्ग है, उसके भी कितने पल, शायद इस संख्या से उनकी संख्या ज्यादा होगी, वो भी नहीं बोलते, एक शब्द भी नहीं कहते। आज आपको पता होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, PM ऑफिस में चले जाओ, कहीं पर भी SC, ST के तो कोई बंदा किसी तरह मिल भी जाएगा, लेकिन OBC का नहीं मिलेगा। सर, इसके तो 1 मिनट में आपसे निवेदन करूंगा। इस मिनट में उसके लिए जो हमारे OBC के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनके घर भी जाएंगे, और जो बात उनसे कहेंगे उनसे भी कहेंगे। किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम किसी से, राजनेता से कुछ मांगने नहीं जा रहे, बल्कि उनको मजबूत करने के लिए समाज की दिशा और दशा को देखते हुए उनको भी सम्मिलित करेंगे, तभी हम जाकर के बहुजन समाज की एकता को मजबूत करेंगे। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक
गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।